Thank you, Jesus. Okay. Are we blessed this morning? क्या आप आशीषित हो? Are we blessed every morning? क्या आप आशीषित हो? नहीं. Are we blessed every morning? क्या आप आशीष हर सुबह होते हैं? How is your morning prayer time? कैसा है आपका सुबह का प्रार्थना? कैसा हो रहा है? Aditya? Amen. Balbir? Good. Amen. Morning day is a direction day. सुबह की प्रार्थना होता है वो हमारे रास्ते के बारे में होता है। Okay, now last time we learned about the morning gates. और हमने पिछले बार सीखे थे कि सुबह का जो दरवाजा होता है। Okay, today we are going to learn more about the gates. Today I am going to teach. आज हम सीखेंगे और भी दरवाजे के बारे में। Okay, how many of you know that there are gates wherever you go? और कितने लोग आप देखते हैं कि जहाँ पर भी आप जाते हो तो आप ऐसे दरवाजे को देखते हो? दरवाजा नहीं बोलते उसको। गेट्स। दरवाजा is door. What is gates in the word? Google. फाटक। तेरे फाटकों में प्रवेश करूँ। फाटक, okay. फाटक, okay, फाटक. You're talking about the gates. Okay. In Bible, in biblical terms also, many cities had many gates. और ऐसे बहुत शहरों में हम देखेंगे ऐसे फाटक को। And you know, in every city in the Old Testament, even in the New Testament, there were gates. और हम देखेंगे पुराने नियम में ऐसे फाटक को। So during the day they were open. और दिन के समय वो खुल जाता है। And in the night it was. और रात को वो बंद कर देता है। And then in the night it was closed. At the night why it was closed? और रात को क्यों बंद करता है? They needed to be shut and to be guarded. और उन्हें उसको गेट को बंद करना है और उसका रखवाला भी करना है। No gates in the city or in the midnight was open. और कोई भी ऐसी फाटक अपने शहर में ऐसे घरों के साथ बाहर कोई भी गेट वो खुला नहीं बल्कि बंद रखता है। Because whatever gate is not guarded, it will be destroyed. और कोई भी ऐसी फाटक को अगर रखवाला नहीं करेगा तो शायद वहाँ पर नाश हो सकता है। It will be invaded. Invaded. It will be invaded. मतलब उसका कोई कब्जा करेगा। It will be invaded. Am I right? Am I right? If the gates are not closed in the night, anybody can come in the night and it can invade. अगर फाटक को बंद नहीं करेंगे तो कोई भी उस पर आकर कब्जा कर सकता है और नाश कर सकता है। Today is a spiritual gate. आज हम देखेंगे आत्मिक फाटक के बारे में। Your life is a spiritual city. आपका एक आत्मिक जीवन जो है एक आत्मिक शहर है। Your soul has gates. और आपका जो प्राण है वो एक फाटक के समान है। आपका सोल के पास एक फाटक है। So when there is a soul, in that soul you open the gates and you close the gates. And आपका जो प्राण है वो एक उसके सामने एक जो फाटक है उसको आप बंद करते हो और खोलते हो। How many of you know what Jesus said in Revelation? Behold, I stand at the door. And knock. Only if you open, I will come in. कितने लोग ये जानते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं आपके हृदय के दरवाजे पे खड़ा हूँ, जो मैं खटखटाता हूँ, जो खोलेगा मैं अंदर आऊँगा। So your soul has gates. आपका जो प्राण है वो उसके पास एक फाटक है। Your mind has gates. आपके जो मन है उसके पास भी एक फाटक है। Your home has gates. आपका जो घर है उसके पास भी एक फाटक है। Now imagine a shopkeeper of a very wealthy or of a jewelry store. मान लो कि एक सोना जो सोनार है और उसके पास एक फाटक है। Okay, imagine a businessman who is running a jewelry store and supposing forget to close the gate. What will happen? मान लो कि एक ऐसा धनी व्यक्ति है जिसका कारोबार सोने का है और उसने भूल गया कि फाटक को बंद करने के लिए। He counts the inventory. He counts the jewelries. तो उसने उस सारे सोना को वो जो ज्वेलरी है वो उसको गिनती करता है। That who? The night before locking, he counts the jewelries. वो उस सारे जवाहरात को वो गिनती करके रखता है। He locks the display systems. और उसके सारे चीजों को वो लॉक करता है। Then he puts the alarm on. और वो अलार्म को भी रखता है खुला। Pulls down the shutters. और वो अपने शटर को बंद करता है। And he goes. और उसके बाद वो चला जाता है। Correct? He goes. Now imagine him saying. अब मान लो कि अगर वो ये कहता है I am too tired to lock tonight. I will not lock. I will just leave and I will go. मान लो अगर वो कहता है कि रात को मैं बहुत थक गया हूँ तो मैं आज
इस फाटक को नहीं बंद करूंगा, मैं ऐसे ही छोड़ के जाऊंगा। Will that store survive? तो क्या वो जो सोनार है, क्या उसका ज्वेलरी जो है, क्या वो क्या बोलते हैं उसको, सुरक्षित है या नहीं? सुरक्षित है क्या नहीं है? Today many believers are sleeping like this. बहुत सारे मसीह लोग इसी तरह अपने फाटक को नहीं बंद करते हैं और सो जाते हैं। Many believers are sleeping without closing their gates. और बहुत सारे मसीह लोग जो है अपने फाटक के आत्मिक फाटक को नहीं बंद करते हैं और ऐसे ही जाके सो जाते हैं। Many Christians, what do they do? बहुत सारे मसीह लोग क्या करते हैं? Before going on the bed बिस्तर पे जाने से or पहले before sleeping, और सोने से पहले, phone हाथ में है, और उनके फोन उनके हाथ में होता है I don't get sleep. और उन्हें नींद नहीं आती, इसके लिए फोन जब लोग तक देखते हैं। स्क्रॉल नहीं करेगा मुझे नींद नहीं आएगा। और जब तक मैं फोन को लेकर उसको चला सही तरह सब देखो नहीं, उसमें जो भी मैं जो देखना है मुझे नींद नहीं आएगी। Then many people are watching some movies which are very offensive. You know, all you can say violence, you can say crime, all these things they are watching in the night. और बहुत सारे ऐसे लोग जो है उसी मोबाइल में ऐसे कुछ मूवी देखते हैं जो क्राइम जैसे लड़ाई वाली मूवी वो सब देखते हैं। Many people have kept the gates of anger open in the night. तो उस समय ऐसा होता है कि उस पिक्चर के द्वारा Check it out, even others also. Many people sleep in anger. तो बहुत सारे लोग जो है इस तरह से उस मूवीज को देखकर या ऐसे भी अपने फाटक को खुला रखकर गुस्से की आत्मा उनके अंदर होती है। Many people go to bed anxious. आज का दिन तो निकल गया, अभी कल क्या है प्रभु, मैं क्या करूं कल? And you know there's so much of worry, so much of anxiousness, so much of stress. They take and they sleep. The gates are not closed. The gates और are बहुत सारे open. लोग जो है वो चिंतित में सो जाते हैं क्योंकि उनका फाटक खुला हुआ है। Many people watch violence and they take a rest. और बहुत सारे लोग ऐसे लड़ाई को देखते हैं और सीधे जाके सो जाते हैं। And then they wonder why my sleep is disturbed. और वो लोग फिर ये कहते हैं कि मेरा रात का सोना जो है वो मुझे नींद बराबर नहीं आई, मैं सही नहीं सो पाया। So this is the way you are keeping your spiritual life open for the attacks in the night. और इसी तरह आप अपने जो रात का जो फाटक को जो आप खुला रखते हो, तो इसी तरह आपके जीवन में ये समस्या होती है। This I'm talking to you today. I'm only making you understand what is the gates. तो मैं आपको आज ये समझाना चाहता हूँ कि फाटक क्या है। Because I don't have time to the Holy Spirit has taken over, and whatever I can I will teach. तो जो भी बातें मैं कहना चाहूँगा मैं कहूँगा, क्योंकि हम देखते हैं कि जैसा पवित्र ने काम किया, हम स्तुति आराधना में थे। So today what I want to ask you is what are the gates? तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये फाटक क्या है। What's the gates in the Old Testament? और पुराने नियम में फाटक क्या थे, What's the gates in the biblical terms? और उसमें उसका मतलब क्या है आत्मिक रीति में। So if there were gates in the biblical terms, today what it is applicable to me in the spiritual realms? अगर वहां पर हम देखते हैं कि फाटक का कोई मतलब बताया, तो आज मेरे जीवन में वो क्या लागू करता है। So gates in the scripture speaks about authority. फाटक जो है उसको ये दर्शाता है एक अधिकार। Then it talks about access. When the gates are open, you can go in or you can come out. So that is called as an access. फाटक जो है एक अधिकार को बताता है, और दूसरी बात यह है कि आपका आना और जाना, जब गेट खुलता है तो आप जाते हो, जब गेट बंद होता है तो आप नहीं जाते। And the third one is protection. और तीसरी बात है उसकी सुरक्षा, उसकी protection, the protection. So in the Old Testament we see that each and every city had gates. हम देखते हैं कि पुराने नियम में हर एक शहर में एक फाटक को दर्शाता And है, in those cities they represented many things. और उस जगह पे शहर में जो फाटक होता था वहां पर बहुत सारे बातों को दर्शाता है। It represented authority. वहाँ पे दर्शाता है अधिकार को, It represented the government. और वहाँ पे एक सरकार की बातों को दर्शाता It है, represented justice. और वहाँ पे ये भी बताता है कि न्याय के बारे में। Then it represented covenant transactions. Many covenants took place at the gates. और हम देखते हैं कि उस फाटक के सामने बहुत सारे वाचाएं जो है वो यहाँ वहाँ अदला बदला होते थे। Then in the Old Testament, the city gates represented protection. और वहाँ पे देखते हैं कि शहर का जो फाटक होते हैं वहाँ पे उसको सुरक्षित को भी दर्शाता है, And it represented the public witness. और उसको
जब उस फाटक को एक लोग भी देखकर एक गवाही के समान है। Okay, now if you read the Bible in the Old Testament, most of the activities were being held at the city gates. हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे कार्य हुआ है उस फाटक के सामने। So now the first thing that we will look is the gate as a place of a government, sarkar. पहले हम उस फाटक के बारे में देखेंगे, सरकार के बारे में। Okay, Deuteronomy chapter 16 verse 18. I don't want to read. It is only for the people. Deuteronomy 16 verse 18 says, "Appoint the judges and officers in all your gates." और यहाँ पे कहता है कि वचन में कहता है कि आपके सारे जो ऑफिसर्स लोग जो है और याजक लोग हैं उनको वहाँ पे आप फाटक के सामने जमा करें। Where they were supposed to be? कहाँ पर उन्हें होना है? Where they were supposed to be? फाटक के सामने। Were they supposed to be in the offices? उनका कहाँ पर, उनका क्या ऑफिस में होना है? Today all the big high delegates, they meet in a place or they meet in the offices. But in the Old Testament, even in the New Testament, people used to meet in the high officials used to meet in the gates. और यहाँ पे कहता है कि न्यायाधीश और जो ऑफिस में काम करते हैं वो सारे लोग जो है उस फाटक के सामने उनको आना है उस कार्य के लिए। The most public place, because the gate in those days it was a happening place. और जो फाटक होता था ये लोगों के सामने होता था वहाँ पर कार्य, इसके लिए उनको वहाँ बुलाए गए। And it was a legal authority in those days. और वहाँ पर फाटक के सामने जो होता था वो एक सही अधिकारी के साथ में। And there was the whole city leadership was sitting over there. और वहाँ पे सारे शहर के जो अगुवे थे वो वहाँ आके बैठते So थे। the gate was symbolized as the governance. और जो वो फाटक है उसको ये दर्शाता है कि वहाँ पे एक सरकार का फाटक। I'm talking to you physical. मैं एक आपको शारीरिक के रूप में बता रहा हूँ। But this is applicable in spiritual. लेकिन इसको हम देख सकते हैं आत्मिक रूप में भी। Now second we see who sat at the gates. तो उस गेट फाटक पर कौन बैठते थे? Elders. वहाँ पर लोग जो याजक जो एल्डर लोग बैठते थे। प्राचीन के। Ruth chapter 4 verse 1 to 2 says, Boaz, he went to the gate and sat down. Then he gathered the 10 elders at the gates and he discussed. हम देखते हैं कि रूत के 4:1 में बोआज ने जो है वो उस फाटक के सामने गए, लोगों के सामने, प्राचीनों के सामने, और वहां पर उसने वार्तालाप किया। There what was happening? और वहां पे क्या हुआ? Legal matters were discussed. तो वहां पे ऐसे बातें कर रहा था जहां पे जो जरूरी बात है, लीगल मैटर जिसको बोला जाता है वो कर रहे And थे। their land was transferred. और उनका जो जमीन है उसको उसका अदला बदलाव किया। Their marriage covenant was happening. वहां पर शादी की वाचा की भी बात हो रही थी। So here we see in the book of Ruth, it is a courtroom. और हम देखते हैं कि ये जो फाटक है उसके सामने जो बात हो रहा था उसका मतलब है कोर्ट रूम। So we see over here it was a decision making place. तो वहां पे हम देखते हैं कि वहां पर बुजुर्गों के सामने वहां पर एक निर्णय लेने जा रहे थे। Okay, the next gate we can see was the gate as a place of wisdom and honor. हम दूसरे फाटक के बारे में देखेंगे जहां पर बुद्धि की और आदर की बात है। How many of you know Proverbs 31? कितने लोग जानते हैं कि नीति वचन 31 It talks about the women. And the women says, that her husband where he sits, her husband sits at the gate. देखते हैं कि हम जैसे नीति वचन 31:23 में कहता है कि उनका जो पति है वो फाटक के सामने बैठता है। The husband is known in the gates when he sits among the elders of the land. So sitting at the gate was a very important position in those days. तो उनका पति जो है बुजुर्गों के साथ में वो लोग फाटक के सामने बैठते तो ये इसका मतलब है बहुत महत्वपूर्ण है ये फाटक के बारे में हम सीख रहे हैं। The people who used to sit at the gates were respected. और जो लोग भी उस फाटक के सामने बैठते थे उनका आदर किया जाता था। They carried a very high level of influence. उनके पास बहुत वास्ता था. They had influence. और उनका आदर माना जाता था क्योंकि उनका सम्मान किया जाता था। And they were recognized as the leaders. और उनको इस तरह से देखते थे कि वो लोग एक बुजुर्ग है और एक अगुवे लोग हैं। So the gate in those days represented as a reputation and a honor.
और यहाँ पे हम देखते हैं कि वहाँ पर उनको जो बैठते थे उनका एक सम्मान किया जाता और उनको आदर दिया जाता So था। what are the gates that we have seen so far? We have seen the gate of government. हमने सरकार के फाटक को देखा Then we have seen the gate of legal courtroom. और हमने देखा कि एक फाटक जो जिसे लीगल कोर्ट रूम कहा And we जाता have है। seen now the gate of influence. और हमने अभी तीसरा जो फाटक है उसको हमने देखा एक आदर और सम्मान का गेट। Now the next gate is the gate of justice. और हम देखेंगे चौथा फाटक को जहां पर न्याय की बात कहता है। Amos chapter 5 verse 15. आमोस में 5:15 में हम देखेंगे Establish justice in this gate. और यहाँ पे कहता है कि वहां पर उस फाटक के सामने न्याय का एक नींव लगाओ। Now you will be thinking, why sister is talking all this gate? What is that got to do with me? It has many things to got to do with you. Today you are in a deep Bible study. आप अगर बोलते हैं कि हमें आज सुबह के समय ये फाटक के बारे में क्यों सिखा रही है, लेकिन मैं बताऊंगा आपको कि फाटक कितना महत्वपूर्ण है। We all having gates in our lives. हमारे जीवनों में भी एक फाटक है। Many people in their dreams they see snakes. बहुत सारे लोग सपने में सांप को They देखता है। see many things which is not good for a Christian because the gates are opened. बहुत सारे मसीह लोग सपने में ऐसी बुरी चीज देखते हैं जहां पर ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो लोग अपने फाटक को खुला रखते हैं। Now this Amos it talks about in that place, in that gate, wherever there was injustice, justice was done. अगर फाटक के सामने हम देखेंगे आमोस 5:15 में वहां पर न्याय का नींव वहां पर लोग रखते थे, इसलिए कि वहां पर अगर कुछ वार्तालाप में ऊंच नीच होता है तो न्यायाधीश लोग होते थे न्याय करने के लिए। And the next gate we see Nehemiah chapter 2 verse 13. हम देखेंगे नहमाया के भी 2:13 में फाटक के बारे में। And then it speaks about the symbols of and then we see some place of protection. हम देखते हैं कि कुछ ऐसे फाटक जहां पर वो सुरक्षित फाटक है, यानी जिसको संभालता है। We see Nehemiah, he went from a different country to the land of Israel to erect those stones and place the 12 gates for protection. हम देखते हैं कि नहमाया एक दूसरे देश से इज़राइल देश में आया, चारों ओर उसने 12 फाटक लगाए और उस दीवार को बचाने के लिए। The city was exposed, the city was in shame, but to protect that, what did Nehemiah do? He erected 12 gates. वो यरूशलेम में, इज़राइल में आके यरूशलेम में जो उनका जो फाटक टूटा हुआ था, एक लोग देखते थे और लोग हंसते थे, यानी शर्म की बात थी। तो नहमाया आकर 12 ऐसे फाटक को लगाकर उसे बचाया। So he restored the dignity and the security over there. तो वहां पर उसने अपना एक सम्मान और उसने उस फाटक की रखवाली की। And the last one that we're going to see, Genesis chapter 2 verse 17. और हम देखेंगे उत्पत्ति का 17 में 22 verse 17. 22 22 verse 17. This is a very important gate for each one of 22 और us. 17 में हम देखेंगे उत्पत्ति की किताब में। The Bible says your descendants, whose descendants? Abraham's descendants. और यहाँ पे कहता है कि अब्राहम का वारिस। Are you the descendants of Abraham? क्या आप अब्राहम के वारिस हैं? You are the descendants of Abraham. हम अब्राहम के वारिस हैं। And your descendants shall possess the gate of their enemies. और यहाँ पे बाइबल ये कहते हैं कि जो दुश्मन का जो फाटक है हम उस पर कब्जा करने वाले लोग। No enemy will come and possess you, but you will have the influence over the enemy. कोई दुश्मन हमारे गेट पर चढ़ाई नहीं, लेकिन हम दुश्मन के गेट पर चढ़ाई करेंगे। So this speaks about not only having a small place, but is having a dominion. तो यहाँ पर हम सीखते हैं अब्राहम के बारे में, जो उसके वारिस है वो दुश्मन पर एक अधिकार जमाएगा। So the word of God says, whenever we see about the door, enter his gates, enter his courts, enter wherever the Bible says gate. There are many places the Bible speaks about the gates. और बहुत सारी जगह पे हम देखते हैं कि जब हम फाटक के अंदर जाते हैं तो कैसे जाए? धन्यवाद के साथ, कैसे जाए? उसकी स्तुति करते हुए। So today we have learned last week one part of how to enter the gates. हमने पिछले हफ्ते में एक भाग हमने सीखा था कि हम फाटक के अंदर जाए कैसे। We are opening those gates in the morning. हम सुबह के समय अपने फाटक को खोलते हैं। So when you are in the night, जब आप रात को होते हैं, the Bible talks a lot of spiritual activity happening in the night. और रात के समय ऐसे बहुत सारे कार्य होते हैं रात के समय। Okay, we are no more
babes in the Lord now. हम लोग इस समय प्रभु में बच्चे नहीं हैं। Anybody needs milk here? किसी को दूध की जरूरत है? Huh? Okay, now we are here, we are grown in the Lord. Today we are matured. Okay, so this teaching is for the matured people. तो मैं आज जो सिखा रही हूँ वो बच्चे लोगों के लिए नहीं, लेकिन जो प्रभु में शाने हो गए हैं। Okay, now the Bible says in the night there are many activities happening. और हम देखते हैं कि रात के समय ऐसे बहुत सारे बातें हो रही है। And in the spirit world, that is the Satanism, Satan's word is active in the night. और आत्मिक दुनिया में हम देखेंगे शैतान जो है वो रात के समय ज्यादा काम करता है। So now we have seen every decision making belongs to the gate. तो हम देखेंगे कि हमने इस समय सीखा कि जो भी है हम निर्णय लेते हैं वो फाटक के ऊपर। Your authority depends on the gate. आपके अधिकार फाटक के ऊपर निर्भर Your करता है। justice depends upon the gate. आपका न्याय आप फाटक के ऊपर निर्भर Your करता है। governance, how you rule in this world depends upon the gate. आपकी सरकार जो है आप किस तरह से उस फाटक पर इस्तेमाल करते हैं। Your protection depends upon your gate. आपकी सुरक्षित उस फाटक के ऊपर Now निर्भर this is करता है। physical. अभी हम देखेंगे शारीरिक हिसाब। What it represents in the spiritual realms. अब हम आत्मिक बातों में सीखेंगे। Your mind is a gate. आपके जो मन होता है वो एक फाटक के समान होता है। Emotions. आपके भावना, Your heart is a gate. आपका हृदय एक फाटक के समान Your होता है। mouth is a gate. आपके जो मुंह है, उन्हें जो शब्द है वो एक फाटक के समान है। Your eyes is the gate. आपकी जो आंखें हैं वो एक फाटक के समान है। Your ear is a gate. आपके जो कान हैं वो एक फाटक के समान है। What are you seeing? आप क्या देखते हो आंखों से? What are you hearing? आप कानों से क्या सुनते हो? What are you speaking? आप क्या बोलते हो? What are you having it in your heart? The Bible says whatever is in the heart, the issues of your heart, it comes out by emotion. और आपके हृदय में जो चीज जाता है, जो कुछ है, वो भावना से बाहर आ जाता है। Do you have fear? क्या आपको डर है? That is one of the gate. वो भी एक फाटक है। Are you afraid of the culture of the people? That is a gate. अगर आप किसी मनुष्य जाति के कुछ ऐसे कल्चर यानी हिंदी में क्या बोलते हैं कल्चर को? सभ्यता। अगर कोई मनुष्य का सभ्यता को अगर हम डर के चलते हैं क्या बोलेंगे अगर मैं ऐसा करूंगा तो? Are you so much possessed with the social media? क्या आप ऐसे सोशल मीडिया जो अब इस दुनिया में इंटरनेट का जमाना है, क्या आप उसके अंदर घुस गए हो? Are you so much focused on the social media? That is a gate. तो अगर आप सोशल मीडिया में ज्यादा हो, इंटरनेट में ज्यादा हो, तो वो भी एक दरवाजे के फाटक के समान है। You need to close all these gates. तो आपको ये सारे जो फाटक है, दरवाजा है, उसको बंद कर देना है। Or are you being led by the Holy Spirit? अगर आप पवित्र आत्मा के द्वारा चलते हो? That's a question I'm leaving with you today. मैं आज ये प्रश्न आपके पास रखता हूँ। Are you a person which has kept the gates open for all the other things of this world except for the gate of the living God? हम देखते हैं कि दुनिया के सारे चीजों के लिए हमने फाटक खोल के रखा है, लेकिन प्रभु के लिए हम बंद रखे हैं। When the gates have been opened and it has been closed, अगर जब फाटक खुलते हैं और उसे बंद करते हैं, so that means you are allowing certain things. इसका मतलब ये होता है कि आप उसे कहते हैं कि आइए इस गेट के अंदर। You are allowing entry. आप उसे कहते हैं कि आओ। You are allowing the influence of the gate. आप उसे मदद करते हैं कि आपके ऊपर वो काबू पाए। You are denying certain people to enter your life. आप कुछ लोगों को मना करते हैं आपके जीवन में You आने are के लिए। denying certain things into your life when you close the gate. जब आप फाटक को बंद करते हैं तो ऐसी कुछ चीज को आप आने के लिए उन्हें मदद नहीं करते, लेकिन उन्हें रोक देते हैं। The word of God says you have the authority to bind and you have the authority to loose. बाइबल बताती है कि आपके पास वो अधिकार है जो आप बांध सकते हो और आप कुछ चीज को खोल भी सकते हो। Amen. Matthew chapter 16 verse 19. मत्ती का 16 और उसका 19वां अध्याय What it says? क्या कहता है? What it says? क्या कहता How है? many of you know that every gate has a key? कितने लोगों को पता है हर एक फाटक के अंदर एक चाबी होती है? होती है कि नहीं होती है? क्या चाबी होती है? Now I'm not talking about the physical gates. What am I talking about right now?
के बारे में नहीं बात कर रही Turn to your neighbor and हूँ, say, मैं अभी आत्मिक फाटक के बारे में बात कर रही हूँ। आपके पड़ोसी से आप कहिए, sister is talking about spiritual. कौन सा गेट बात कर रहे हैं? आत्मिक के बारे में, आत्मिक के बारे में, ओके, आत्मिक के बारे में। कौन सा गेट बात कर रहे हैं? नहीं, मेरा घर का द्वार के बारे में नहीं, आत्मिक गेट, मेरा घर का द्वार के बारे में नहीं, मैं मेरा घर का दरवाजे के बारे में नहीं, वो चाबी मेरे पास है, ओके। I'm talking right now spiritual gates, which is your gates. मैं आत्मिक फाटक के बारे में कह रहा हूँ जो आपके पास है। What is Jesus says? यीशु ने क्या कहा? पढ़ो, जोर से पढ़ो। आप जोर से पढ़िए। यीशु मत्ती का 16 उसका 19। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दे रहा हूँ ताकि धरती पर जो कुछ तू बांधे वो परमेश्वर के द्वार स्वर्ग में बांधा जाए और जो कुछ तू धरती पर छोड़े वो स्वर्ग में परमेश्वर के द्वारा छोड़ दिया जाए। Amen. यीशु ने किसको किसको यहाँ पे चाबी दिया है? सिर्फ मेरे को दिया है। क्या आपके पास चाबी है? यीशु ने सिर्फ मुझे चाबी दिया है। आत्मिक चाबी है आपके पास? किसके किसके हाथ में चाबी दिया है? क्या आत्मिक कुंजी है आपके पास? Amen. So each one of you have a key. तो आप सबके पास एक आत्मिक कुंजी है। Are you using it? क्या आप उसे इस्तेमाल कर रहे हो? या उधर किधर कोने में पड़ा है, उसको जंग पकड़ रहा है? या तो आपने कहाँ पर रख दिया है? Today I was Become rusted. telling the people that were praying there. I don't know what. Sorry, but I don't know what they were praying. Just the mouth was shaking. I couldn't hear anything. What? He was just praying there when they were praying. So I went over there and I told Anil, bind and loose. Use the command. We are praying there 5-10 minutes. Use your authority in praying. जब भी हम प्रार्थना करते हैं या तो सुबह हम कलीसिया में आकर वहां पे खड़े के प्रार्थना करते हैं तो अधिकार के साथ में प्रार्थना करें, बांधे शैतान के हर उस कार्य को। Amen. Your soul is spiritual. आपका जो प्राण है वो एक आत्मिक दर्शक And है your soul is a spiritual city. और आपका जो प्राण है वो एक आत्मिक शहर है। You are exposed to shame. You are exposed to the enemy. You are exposed to the hatred of Satan. He does not like you, my dear beloved. But Jesus loves you. But Satan hates you. So you sometimes have given him that authority to come and take charge over your life. और जैसे हम कहते हैं कि हमारा आत्मिक प्राण एक फाटक के समान है, हम उस समय शैतान के लिए ये फाटक खोल देते हैं। याद रखिए कि शैतान कभी भी हमें पसंद नहीं करता है, वो हमें नफरत करता है और वो चाहता है कि हमें नाश करे। यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है, लेकिन बहुत से समय हम फाटक को खुला रखते हैं, शैतान को मौका देते हैं कि हमारे जीवन में आइए और काबू करे। Do you know that your soul is a city? क्या आपको पता है आपका एक जो प्राण है अंदर वो एक शहर के समान है? Okay, I will speak from the scriptures. Open the scriptures. Proverbs chapter 25 verse 28. मैं आपको वचन से बताऊंगी। नीति वचन 25 में 28 में आप पढ़े, आपके सामने है। Whoever has no rule over his own spirit. Turn to your neighbor and say, my spirit, 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 my spirit, I am a spirit. I am a spirit. कितने लोगों को मालूम मेरी है? आत्मा। कितने लोगों को मालूम है कि पास्टर जेडा एक स्पिरिट है, एक सोल है और एक बॉडी है? कितने लोग आप जानते हैं कि हम जो है परमेश्वर हमें बनाया है, हमें आत्मा, प्राण और शरीर में। Amen. Amen. Spirit, soul and body. आत्मा, प्राण और शरीर। So what it says over here, whoever has no rule over his own spirit is like a city broken down without walls. और ऐसा बाइबल में बताती है, ऐसा जन जिसको सोवे पर निरंतर नहीं, वो उस नगर जैसा है जिसका परकोटा ढा कर बिखर गया हो। क्या आपका नगर, आपका जो शहर, आपका सिटी, has it broken down? क्या आपका जो शहर जो है जिस पे आपने कंट्रोल नहीं किया, क्या वो टूट चुका है इस समय? That is for you to answer. तो आप
इस बात को आप बहुत सोच सकते हैं। It is for you to answer. What is your city right now? तो आपका शहर इस समय कैसा है? Is your city right now going through a spiritual discipline? क्या आपका जो शहर है, जो फाटक है, क्या वो इस समय अनुशासन में जा रहा है? Does it have emotions in it? Emotions set back. अरे उसने मेरे को praise the Lord नहीं बोला, अरे मेरे को उसके ऊपर गुस्सा है, वो गुस्सा लेके मैं बैठा है 2, 3, 4, 5, 6, 5 साल, and that is the one place where Satan has hold over your life. बहुत समय हम ऐसे बातों को रखते हैं हमारे उस प्राण के अंदर, आत्मा के अंदर, जहाँ पे हमें वो चीज को नाश करता है। जैसे कि किसी पे हम गुस्सा रखते हैं, या किसी को हम जिसने अगर हमसे प्रेज द लॉर्ड नहीं बोला तो हमें नफरत हम रख लेते हैं, और बहुत समय ऐसे चले जाते हैं दिल में इसको रखकर हम अपने शहर को खराब करते हैं। Sometimes, I'll give you my example. Some we have had many people, and suddenly those people are turning against us. Do you keep that anger? बहुत हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हम देखे हैं हमारे जीवन में। बहुत सारे लोग जो है हमारे बारे में पीछे बातें करते हैं, तो क्या उसका हमें गुस्सा क्या हमें रखना है? And when that thing comes to our ears, what will be our reaction? Immediately close the gate. तो उस समय जब कोई आके हमें बोलता है हमारे कानों में, उस समय हमें क्या करना है? हमें उस समय उस फाटक का दरवाजा को बंद कर देना है। कर देना है। Immediately close the gate. Don't allow Satan. उसको मौका भी मत दे दो कि वो आके आपके ऊपर राज करे। हम उसे मौका ना दे कि वो हमारे जीवन में आके राज कर सके। And that is a time when you do. The Bible says you have the whole day to think about it. And when the sun comes, you have a time limit. When the sun, before the sun goes down, that's a time limit. Before the sun goes down, you have to release those people. हम यहाँ पे देखते हैं बाइबल में ये भी कहता है कि सूरज ढलने से पहले हमें उस लोगों को छुटकारा देना है, क्षमा कर देना है। क्यों? Why before the night comes? क्यों? बाइबल बताती है कि रात को आने से पहले। Because in the night there are many spiritual activities happening which will destroy your life. अगर आप उसको क्षमा नहीं करेंगे, आप उसको छोड़ेंगे नहीं, तो रात को ऐसे बहुत सारे शैतान के जो कार्य होते हैं वो आपको नाश कर सकता है। Why the night? Why I'm talking about the night? The night your gates needs to be closed. रात को आपका दरवाजा जो है, जो फाटक है, उसको बंद करना है। Because if you see in the examples in the Bible, night was an activity where most of the people in the Old Testament encountered something. हम देखते हैं कि रात के समय ऐसे जब आपके फाटक बंद होता है, तो आप देखते हैं कि रात के समय आप एक एनकाउंटर हो सकता है। Okay, I don't have time. I will just little I will share, and maybe some other time I will talk about this. In the night, if you see in Genesis chapter 28 verse 12, Jacob had a dreams and he had an encounter with the living God. हम देखते हैं कि रात के समय याकूब जो था, वो 28:12 में कहता है उत्पत्ति का, कि रात के समय याकूब ने सपना देखा। उसने देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी से स्वर्ग तक पहुंची है। So we see activity happening. We see the activities happening in the night when you're fast asleep. तो जब आप रात को सारे फाटक को बंद करने के बाद जब आप सोते हैं, तो आप देखोगे इस तरह का कि स्वर्गों को आप उतरते नीचे जाते हुए। Okay, and the next one you can see angelic activity happening. Acts chapter 12 verse 7. हम देखेंगे प्रेरितों के काम में 12:7 में। And the word of God says, and behold, an angel of the Lord stood by him, and a light shone in the prison, and he struck Peter on the side and raised him up, saying, "Arise quickly!" And his chains fell off his hands. So, what is the topic over here right now? Is what happens in the night? There are too many angelic activities. हम देखते हैं कि रात के समय अचानक प्रभु का एक स्वर्गदूत वहां आ खड़ा हुआ। जेल की कोठरी प्रकाश के जगमग हो उठी। उसने पतरस की बगल थपथपाई और उसे जागते हुए कहा, जल्दी खड़ा हो। जंजीर उसके हाथों से खुलकर गिर पड़ी। So we see angelic activities. हम देखते हैं कि स्वर्गदूत रात के समय आया। First we see the dreams. पहला देखा हमने सपना। Second we see angelic activities. फिर हम देखते हैं कि स्वर्गदूत आके वहाँ पे काम कर। Third, we see most of the time the Bible speaks about Psalm 91 verse 5. Fear and terror shall enter the night. हम देखते हैं कि रात को भजन संहिता 91:5 में कहता है कि रात में तुमको किसी का भय नहीं होगा और शत्रु के बाणों से तू दिन में भयभीत ना होगी, क्योंकि रात के समय डर यानी ये सब बातें हमें अटैक करती है। 1 Samuel chapter 3
In the night there are divine encounters. हम देखते हैं कि पहला शमूएल का 3:3 में क्या हम देखते हैं कि एक डिवाइन यानी Pavitra. देवीय पवित्र चीज होती है। You can read that. Samuel यहोवा की पवित्र आराधना। मैं बिस्तर पर सो रहा था, उस पवित्र आराधनालय में परमेश्वर का पवित्र संदूक था, यहोवा का दीपक आप भी जल रहा था। Amen. So we see a time in the night. It speaks about a place where you can have dreams. रात के समय आप देख सकते हो कि सपना आप देख सकते हो। Dreams is when you are resting आप जब आराम करते हो नींद में and you are not allowed and you are not talking and God is talking. आप नहीं बात करते हो नींद में, लेकिन परमेश्वर आपसे बातें करता है। Because the Lord cannot speak to you in the daytime. क्योंकि दिन भर प्रभु आपसे बात करने के लिए मुश्किल हो जाता है। क्यों बताओ? इसलिए क्यों प्रभु हमसे बात नहीं कर पाता है दिन क्यों भर? प्रभु हमसे बात नहीं कर पाता है? हम बिजी है और हम प्रभु को मौका नहीं देते हैं बात करने के लिए। हम बिजी है और हम प्रभु को मौका देता नहीं है। So God speaks to us in our dreams. God speaks to us in our dreams. So night time in the Bible it says it's a type of a revelation. और रात का समय होता है एक समय प्रकटीकरण का। It's a time of angelic intervention. और ये टाइम होता है कि स्वर्गदूत हमारे साथ में कार्य करने का। And it's a time where fear and terror are roaming around, but the Lord has given us Psalm 91 because unless and until we are under the shadow of the Almighty, we are protected. और रात के समय ऐसा होता है कि हमारे इर्द गिर्द बाजू में जो है अंधकार का एक डर सा छाया सा होता है या कुछ शैतान के कार्य होता है, लेकिन उस समय परमेश्वर हमारे बीच में रहता है और हमें बातें करता है। It's a time of calling. Night is a time of calling. और ये रात का समय होता है आपकी बुलाहट। For example, it will say, Karan, आ जाओ। Karan, प्रभु आपको बुला रहा है, आ जाओ, ये जगह पे जाओ, ये काम करो। तो that is the time the Lord will call you and take you to that place. और यहाँ पे ऐसा होता है कि रात के समय ही होता है जब प्रभु आपको बुलाता है कुछ कार्य देने के लिए, कुछ बोलने के लिए। Amen. So night is not a time. If you are resting, God is working. अगर आप आराम कर रहे हो नींद में, तो प्रभु आपसे फिर बात करने लगता है। इसके लिए you need to close all the negative gates. इसलिए आपको सारा जो फाटक है वो बंद करना है। We have to guard our gates. हमारे फाटक के जो फाटक है उसको हमें संभालना है। Amen. Part 2, if you are interested, come again. Part 3. अगर हमारा पार्ट 2 खत्म हुआ है, पार्ट 3 अगर आप सुनना चाहते हैं तो आप जरूर आइए। Okay, but sorry, I don't have time right now because we have other activities also to be done. So one thing that I want to tell you is learn to close your gates. सीखो कि वो जो फाटक है उस सारे दरवाजे उसके बंद कर दें। I will not go empty hand, not make you think, okay, what is the gates? Some of the issues that you have. फाटक जो ये है कि ऐसा ना कहिए कि आप खाली आ जाए, लेकिन आप सोचें कि ऐसे कुछ आपके जीवन में ऐसे कुछ कार्य हो रहा है। You have some issues with somebody. You know, the eyes do not see certain things which you will meditate throughout the night. Close that gate. Do not hear certain things which will keep your gates open. Close that gate. The gates of your heart. You have certain issues with somebody. Close that gate. If you have if you have spoken anything negative, if somebody has spoken to you negative, close that gate and enter the night peacefully. और जैसे कि आपके आँख हो गया, कान हो गया, होठ हो गया, आपके मुंह हो गया, जो बातें आप करते हो, जो आपके हृदय हो गया, मन हो गया, ये सारे चीजों को आपको पता है कि हम क्या चीज के लिए इसे देखना है। अगर हम देखते हैं ऐसी चीज जो हमें तकलीफ देता है या हमें परेशान करता है, तो हमें वो फाटक बंद कर देना है। Amen. हमें कान जो सुनते हैं गलत बंद करना है, सोचना गलत बंद करना है। ऐसे सारी चीजों जो हमें नुकसान पहुंचाता है, वो फाटक को बंद करना है। So last time we had learned about opening the doors in the
morning for the whole day. हमने पिछले बार सीखी थी कि सुबह के समय हमें फाटक को खोल के रखना है, And in the night, today we are learned to close certain gates which is not good for you. और कुछ ऐसे फाटक को हमें बंद करना है जहां पर हमारी उसकी जरूरत नहीं है। Okay, I have not finished this topic. We will continue some other time. So today I want you to, when you're sleeping in the night today, I want you to minister to yourself. Lord, I close certain gates which is not good for me. आपकी बिस्तर पे जाने से पहले, सोने से पहले आप प्रार्थना के साथ में सारे वो दरवाजे जो है आपके वो बंद करना है, उसको सही सुरक्षित रखना है, संभालना है, उसके बाद आपको सोना है। Come, we will stand in His presence. आइए इस समय हम खड़े हो जाए। Just declare with me. आइए इस समय Repeat after me. Lord, we surrender ourselves to you today. प्रभु इस समय मैं अपने आप को आपके हवाले करता हूँ। Lord, we have kept ourselves open for the activity of the evil one. और मैं प्रभु जी हर एक उस बुराई को मेरे फाटक से मैं दूर रखता हूँ। Right now, Lord, we take authority. प्रभु इस समय मैं अधिकार को लेता The हूँ। keys that you have given me, जो चाबी जो कुंजी आपने मुझे दी है, we close every gate that is open in our life. वो सारे उस दरवाजे को मैं बंद करता हूँ मेरे जीवन में। Every demonic activity or everything that has come from my eyes, from my ears, from my mouth, from my heart, and from my mind, right now I take authority and I bind every of those activities, the gates which have been opened in Jesus' name. और जो भी मेरे आंखों के द्वारा, कानों के द्वारा जो भी शैतानी कार्य को जो मेरे जीवन में वो नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, आना चाहते हैं, मैं वो सारे दरवाजों को बंद करता हूँ यीशु के नाम में। And Lord, I pray that I may have a restful and a peaceful sleep in the night, that I may have dreams and visions and encounters with you alone. और प्रभु मेरे जीवन में मैं प्रभु अपने आप को आराम करता हूँ रात के समय, जो आपके मैं दर्शन को देख सकूं, पवित्र आत्मा को देख सकूं, मैं आपका आवाज को सुन सकूं। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में। Amen. Amen. God bless.